Good evening, everyone, to this Friday evening webinar on stress management under crisis. As you know, in today's scenario, everybody is undergoing crisis some or other way. So AMA has chosen the very good subject which is applicable to many of us. That is how to manage the stress. And we have our healer, Mr. Rupesh Booth, is a today's speaker. I'll just say a few words about him. Mr. Rupesh Bhatt is a Reiki Grandmaster and spiritual healer at Divine Light Healing and Training, Ahmedabad. Mr. Rupesh Booth has learned and is a practitioner of many healing modalities like panic, mantra healing, crystal healing, magnified healing, Lama, Fera, Osho Tarot, Melchizedek method, and many more. For Mr. Booth, learning is an endless process. He applies new learning from his previous healing session to achieve better and faster results in his next healing sessions. Over to Mr. Rupesh Booth. Hello everyone, good evening. I hope I'm audible and you can hear me. Yes, let's keep this session interactive. That will be more fun. And whenever you want to ask any question, you can raise your hand, and if I have any answers, you can show your thumb. That would be a really great and pleasurable way to conduct this seminar. More interactive and more happening will be like we both are talking to each other, or else it will be like a radio. I am only speaking, and I don't know whether everybody is listening or not. Right? So hope you are getting me. Let's move ahead. Let's start with the screen sharing. As such, I personally feel like rather than going into the English, I'll go with the Hindi. Hindi, we can all relate a lot and we can understand the topic very well. Is it okay with everyone? If you can show the thumb, it will be great. Or you can write the message on the chat box. Yes, I'm okay. Nirali, yes. Subroto, yes. Great, okay. Someone has a question. Giriraj Dave, yes. So most of the people are ready to go with the Hindi language. So let's go ahead accordingly. Stress. So हम सब ने नाम तो सुना ही है. Okay, somebody is having question. Yes, Jaideep Shukla can yes unmute and ask the question. I guess he is raising the hand for the okay. Anyways, हम सब ने stress का नाम सुना ही है. Stress, anxiety, anger, frustration, दुख, डर और बहुत सारे ऐसे रीजन की वजह से हमारे माइंड में स्ट्रेस ओवरलोड हो जाता है. ठीक है, स्ट्रेस अभी तो ऐसा है कि स्ट्रेस एक अननोन शब्द नहीं है, एक ब्रांड नेम बन गया है. ओ लाइक तुझे स्ट्रेस हो रहा है, ओ यू आर इन स्ट्रेस, ओ यू आर इन सम प्रॉब्लम. और धीरे धीरे ये स्ट्रेस का रूप एक डिप्रेशन का नाम भी ले लेता है. राइट, बट स्ट्रेस इतना डेंजरस क्यों हो गया है? स्ट्रेस के ऐसे तो क्या इम्पैक्ट है हमारी लाइफ में कि अगर हम स्ट्रेस को हमारी लाइफ से निकाले नहीं, इफ वी डू नॉट रिलीव द स्ट्रेस फ्रॉम आवर माइंड एंड आवर बॉडी, हाउ बैडली इट कैन अफेक्ट अस. लेट अस लुक एट दैट पार्ट. ओके, स्ट्रेस ज्यादा होने की वजह से सबसे पहले तो हेल्थ इश्यूज होते हैं. मोस्ट ऑफ द लाइफस्टाइल डिजीजेस जिसमें आ जाता है डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, थायराइड, राइट, वो सारे के सारे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं स्ट्रेस से रिलेटेड है ही है. मैं कई सालों से हीलिंग कर रहा हूँ, और जब भी मैं किसी का थायराइड का हीलिंग कर रहा हूँ या इधर डायबिटीज का हीलिंग कर रहा हूँ, तो रादर देन हीलिंग दैट पर्टिकुलर ऑर्गन, मैं उनको स्ट्रेस रिलीविंग की एक्सरसाइज भी बहुत देता हूं, जिससे कि उनका मन शांत रहे. एंड द रिजल्ट्स आर अमेजिंग. दिस प्रूव्स दैट this kind of pains and problems has more connection with the mind, has more connection with the stress. Right. कॉन्स्टिपेशन भी एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स में आता है, अभी तो बहुत लोगों में देखा गया है. उसी तरह से नी पेन, जॉइंट पेन्स एंड व्हाट नॉट. मैं अगर इसके नाम लेने जाऊंगा तो 1 घंटा तो ऐसे सारे डिजीजेस में ही चले जाएंगे जो स्ट्रेस की वजह से हम लोग फेस करते हैं. स्लीप इश्यूज का भी बहुत बड़ा रीजन स्ट्रेस है. उसके बाद
अगर हेल्थ अच्छी नहीं रहेगी तो डेफिनेटली परफॉर्मेंस, हमारे काम में हमारा परफॉर्मेंस तो कम होना ही होना है। तो परफॉर्मेंस इश्यूज भी स्ट्रेस की वजह से आते हैं। ओके, सपोज की हेल्थ अच्छी है लेकिन हमारे बैकग्राउंड में, बैक ऑफ द माइंड में बहुत सारा प्रेशर है, डिस्टरबेंस है, एंजाइटी है, तो भी हमारा परफॉर्मेंस कम होता जाता है। ऑफिस में हमें बहुत सारा लोड मिल जाता है, काम टाइम कम है, even then we face lots of performance issues. 1 minute. And once परफॉर्मेंस इश्यूज होने लगते हैं, हमारा काम टाइम पे कंप्लीट नहीं हो पाता है, उसकी इम्पैक्ट हमारी पर्सनल लाइफ पे, हमारे रिलेशनशिप में आती है, और रिलेशनशिप में अननेसेसरी स्ट्रेस होता है। ये हम में से बहुत सारे लोगों की लाइफ में हुआ होगा कि ऑफिस का स्ट्रेस, ऑफिस का गुस्सा, ऑफिस का फ्रस्ट्रेशन हमने घर पे निकाल दिया हो, घर का स्ट्रेस, घर का गुस्सा वो हमारे काम पे आ गया हो, हमारे काम पे दिखने लगा हो, हमारा परफॉर्मेंस डाउन होता है। यानी ये माइंड गेम, माइंड में ये सब चलता ही रहता है। एक प्रॉब्लम यहाँ से वहां, वहां से यहाँ, और प्रॉब्लम पाइल अप पाइल अप पाइल अप होती ही रहती है, अनलेस जब तक कि हम उसको किसी ना किसी मेथड से रिलीव ना कर दें। राइट? Okay, somebody has asked me the question like, please differentiate between the stress, anxiety and the frustration. एंजाइटी इज समथिंग कि हम सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं किसी भी पॉइंट के बारे में, राइट? लाइक ये जैसे फॉर एग्जांपल एक बच्चा पकड़ के चलते हैं कि उसका रिजल्ट आने वाला है, रिजल्ट आने में आधा घंटा बाकी है, वो he is anxious कि मैं पास होऊंगा या फेल होऊंगा, मैं पास होऊंगा या फेल होऊंगा, that will go, you can see that is an anxiety। ये काम मुझसे होगा या नहीं होगा, ये काम मुझसे होगा या नहीं होगा। हमारा माइंड थॉट इतना ही उसमें डूबा रहता है कि जिस चीज पे फोकस करना है वो तो हम फोकस ही नहीं कर पाते हैं। फ्रस्ट्रेशन यानी कि हमें पता है, एक एग्जांपल से समझ लेते हैं कि हमें पता है मैं ये कर सकता हूं, मेरे में काबिलियत है, मैं कर सकता हूं, इट इज एन ईजी फॉर मी, स्टिल मैं नहीं कर पाता, तो उसके बाद जो अंदर गुस्सा आता है, that we can say it is a frustration, right? And stress we can say the something, the moment in our mind जो हमें अच्छा नहीं लगता है। स्ट्रेस किसी भी वजह से आ सकता है, इट कैन बी ड्यू टू एंजाइटी, इट कैन बी ड्यू टू फ्रस्ट्रेशन, इट कैन बी ड्यू टू बोर्डम, इट कैन बी ड्यू टू फियर, इट कैन बी ड्यू टू any negative feelings that makes us feel unhappy। किसी भी तरह से जब हमें ऐसा लगता है कि हमारा मन दुखी है, हम उसको स्ट्रेस कह सकते हैं। ऐसा क्यों कह सकते हैं? क्योंकि अपसेट माइंड, दुखी मन का परफॉर्मेंस कम होता है, गिरने लगता है, राइट? आई होप आई एम एबल टू रिप्लाई द पर्सन। ओके, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और अल्टीमेटली स्ट्रेस की वजह से जो सबसे ज्यादा फेस हम करते हैं वो होता है एनर्जी इश्यूज। हम जितना ज्यादा अपसेट होंगे, हम जितना ज्यादा डिस्टर्ब रहेंगे, डिप्रेस्ड रहेंगे, उतने एनर्जी इश्यूज हम फेस करेंगे, नो डाउट इन दैट। यस, और जितना ज्यादा खुश रहेंगे, जितना हैप्पी रहेंगे, जितना फोकस्ड रहेंगे, जितना सेटिस्फाइड रहेंगे, हमारी एनर्जी उतनी ही ज्यादा अच्छी और बेहतर रहेगी। यस, दैट इज अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। ये इस बार हम लोग ऑनलाइन मिल रहे हैं, नेक्स्ट टाइम जब भी मौका मिला तो मैं इसको ऑफलाइन में प्रैक्टिकली प्रूव करके बताऊंगा कि जब भी हम दुखी होते हैं तो उसका हमारी बॉडी पे एनर्जी वाइज कैसा इंपैक्ट रहता है, और जब भी हम खुश होते हैं तो उसका एनर्जी वाइज हमारी बॉडी पे क्या इंपैक्ट रहता है, राइट? तो एक चीज तो हमें अभी समझ में आ गई है कि हमारी लाइफ में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसी भी डायरेक्शन से स्ट्रेस तो है ही है, और स्ट्रेस को दूर करने के लिए हम कोई ना कोई उपाय तो करते ही है। स्ट्रेस बस्टर्स जो हम रेगुलरली यूज करते हैं, वो जानने से पहले मैं एक छोटी सी स्टोरी बताऊंगा जहां से ये सारा का सारा स्ट्रेस रिलीविंग का कॉन्सेप्ट मेरे माइंड में स्टार्ट हुआ। ये स्टोरी मैंने भी इंटरनेट पे पढ़ी थी, वीडियो में देखी थी, बट I was not very much happy with that story. That is a very famous story, stress management story.
आप में से बहुत लोगों ने इसको इंटरनेट पे देखा होगा। द स्टोरी गोज लाइक दैट कि भाई एक प्रोफेसर एक क्लास में आता है, वो अपने हाथ में ग्लास उठाता है, ग्लास उठा के बच्चों से कहता है कि ये ग्लास का वजन क्या होगा। कुछ बच्चे ने कहा कि भाई 100 ग्राम 200 ग्राम। लेट से हम पकड़ के चलते हैं कि 300 ग्राम। अगर इस ग्लास को मैं 10 मिनट के लिए उठाऊं तो उससे मेरे हाथ में क्या होगा? प्रोफेसर ने बच्चों से पूछा। बच्चों ने कहा कुछ नहीं, आप उसको उठा के नीचे रख सकते हो और नथिंग विल हैपन टू योर हैंड। प्रोफेसर ने पूछा अगर इस ग्लास को मैं इसी तरह से पूरे दिन उठा के रखूं तो क्या होगा मेरे हाथ का? बच्चों ने कहा कि इन दैट सिचुएशन योर हैंड विल स्टार्ट पेनिंग। और पूरे दिन अगर उठा के रखोगे तो हाथ नम हो जाएगा। अगर मैं पूरे हफ्ते में हाथ उठा के अगर ग्लास इस तरह से पकड़ के रखूं तो क्या होगा? तो बच्चों ने कहा कि इट कुड हैपन अ पैरालिटिकल इफेक्ट टू योर बॉडी, इट कुड हैव अ पैरालिटिकल इफेक्ट टू योर बॉडी, राइट। और बाद में प्रोफेसर ने वो ग्लास नीचे रखते हुए बच्चे से कहा कि यू आर राइट, ग्लास ऑफ वाटर इज दैट स्ट्रेस दैट यू आर होल्डिंग इन योर माइंड। हमें सिर्फ वो स्ट्रेस उसको पकड़ के नीचे रखना है, उतना ही है। बट माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर लिसनर्स, क्या स्ट्रेस को नीचे रखना, स्ट्रेस को हमारे माइंड में से हटा देना इतना ही आसान है कि एक ग्लास जो हमने पकड़ के रखा है उसको नीचे रख दिया और हमारा स्ट्रेस चला गया? अगर इतना आसान होता तो लाइफ बहुत बहुत सिंपल होती। ठीक है, हमारा गुस्सा जो ऑफिस का था वो ऑफिस में ही रहता, घर तक नहीं जाता, और घर का गुस्सा वहीं पे खत्म हो जाता, ऑफिस तक नहीं आता। लाइफ कुड हैव बीन वेरी 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 सिंपल अगर हमारे पास ऐसा कोई स्विच होता कि एक बटन दबाया माइंड चेंज, बटन दबाया माइंड फिर से चेंज। ठीक है, चलिए, तो मुझे लगता है ऐसी एक स्विच है जिसके बारे में हम आज डिस्कशन करने वाले हैं। हम आगे बढ़ते हैं। इन बिटवीन अगर किसी को कुछ भी डाउट हो, किसी को कुछ पूछना हो, तो दे आर डेफिनेटली फ्री टू आस्क। Yes, no hand raised. Okay, I hope everybody is following me. You can show your thumb and let's move ahead. Yeah. Okay, Giriraj Dave and AMA. Yeah, thank you so much. Okay, Giriraj Dave has raised hands. You can definitely ask questions if you have any. No, sir. Yes. There is a question. Yeah, Because, please. like for example, as you anger, anxiety, frustration, you differentiated in a nice way. Yes, thank you. Now, there are immediate effects on your health, body, relationship. Yes. Number one, there are after long effects also, which may continue for a longer duration if you come out of that also. Yes. So, can you please throw some light on it? Exactly, you are asking what could be the effect on our body if the frustration, anger, and stress is there continually on our body. Are you asking that? Yes, short term and long term, yes. Okay, so short term and long term. So if we keep holding the frustration too much in our mind will be like, it will happen in any work, the frustration will come up at the top. So if we will be assigned some new task, we will take that task negatively. It will happen with us. So the frustration will start playing the major role. We will start analyzing everything critically that could happen. If our mind goes too much in the anxious way, too much of anxiety is playing on our mind, we may go havoc in the sense we may have some kind of an anxiety attack, like you do the driving of the two-wheeler or a car regularly. If you have too much of anxiety in your mind, you will go like, whether I'll be able to reach my home or whether I'll be able to reach that place or not. The anxiety based thoughts will keep on going and keep on going. Yes, right.
I hope I am able to clear this thing. But if you will hang on with me in this session, I will help you that how you can reduce this anxiety and the frustration effect that has been already there in your mind. Right. Okay, somebody has asked, when will COVID end? Well, my dear friend, thank you for your question. But I have no idea when will COVID end. But be positive. The things will be very well. If you will stay positive, the COVID may affect you very less. That's what I can say from my experience. It's just an opinion. Yeah, yes, sir. That's true. Mind gets hijacked. The prefrontal cortex stop functioning. Okay, somebody has informed me how the things work. Yeah, thank you, my dear friend. Okay, so we use many stress busters to release our stress. Let's look at all those stress busters that we use in our life. Like for example, we have a lots of tea break, coffee break, and like that. Then we have also, wait a minute. I don't know, there's some technical error. Can you all see my screen? Please show me a thumb if it is okay. Yeah, okay, fine. I thought there is some issue. Fine, if you can see my screen, that is well and nice. Yes, okay. Everybody can see the screen. Yes, so the stress busters that we use, that we take lots of tea breaks or coffee breaks like that, those have some kind of a nicotine, some sort of a nicotine substance that helps to release the stress. But the bad part about that is addictive. That is not the good for the health. Many doctors and many Ayurvedic consultants tells you to avoid tea at all. Many of them would start going for the exercise, but is it practical, or is it possible that you are doing some work and you are stressed out and you will tell your boss, oh, wait a minute, I need to do 10 push-ups and 10 sit-ups that will help me relieve my stress? So that's impractical. That's in office. It is really difficult. Then another stress busters that we use is we start talking with our friends, and most of the time it is the gossiping that is going on around. Less than talking, more than gossiping. Then again, we will try to sleep like a child, but this is the time that it is a dream for everyone to sleep like a child, forgetting everything, no mobile and no calls and no tension for tomorrow. Right, then again we will have a group get together and we'll do some selfie work and all those stuff. So at the end we will meet up the friends, and then we can have, this was a trend since the last few years, that if you are too much stressed, if you are a little bit depressed, you'll go for a motivation seminar and attend some seminar and grab some of the positive things within you, and done, the dosage is done for the few days, and once the dosage is down, the motivation is down, you'll again jump on another motivational seminar or motivational videos to free down the stress. Yes, family and society lifestyle nowadays increase the stress. What is the solution, my dear friend? Please stay on this seminar. Today itself, I'm going to give some sort of solution that you can do at your office desk and at your place itself to release your inner stress, for sure. Then you would like to listen to the music. Nowadays, the OTT platform, we will go for the movies or series or something like that to release the stress. But there is one small thing common among all the stress busters that we have seen here. All these stress busters has one common thing, and that one common thing is that this thing do not exactly remove the stress. ये आपकी लाइफ में से स्ट्रेस रिमूव नहीं करता है, ये स्ट्रेस को नीचे दबा देता है और उसके ऊपर दूसरे दूसरे थॉट्स, अच्छे विचार आने लगते हैं, तो टेम्पररी आपको ये लगता है कि आपका स्ट्रेस चला गया है. ठीक है, राइट. सो ऑल दो स्टफ्स, you say exercising, you say motivational seminar, you say music, except for the sleep, all these stress busters, maximum what they do, they just give you some kind of a feeling that those irritating thoughts are away and you are with the new thoughts.
but those irritating thoughts, those problematic thoughts are there with you in your subconscious mind, creating the problem. वो थॉट्स आपके सबकॉन्शियस माइंड में है। फिर जब भी एक साथ गुस्सा आएगा तो सारे विचार, सारी पुरानी बातें एक साथ सामने आएगी, एक साथ सब सामने आएगा और वो सारा स्ट्रेस बाहर आएगा। फिर से जब भी दुखी होंगे तब सारे के सारे दुखी विचार आएंगे, सब पेन, सब प्रॉब्लम सब एक साथ बाहर आएगा, राइट। तो उसका मतलब ये एकदम क्लियर है कि जो भी विचार है वो आपके माइंड से गए नहीं है। ये जो स्ट्रेस बस्टर्स टेक्निक है, इससे सिर्फ इतना ही हुआ है कि आपने नए नए विचार डाल दिए अपने माइंड के अंदर, जिसकी वजह से आपको लग रहा है कि आपका स्ट्रेस चला गया है। अभी अभी एक नया ट्रेंड चला है, कुछ लोग यूज करते हैं लाइक मेडिटेशन। ये अगर एकदम परफेक्ट किया हो तो आपको हेल्प कर सकता है। एंड अनदर वे राउंड, पीपल गो फॉर द healing sessions. This is not so famous, very few people are aware about the healing, but this is again a very best methods of releasing the stress. Okay, किसी ने पूछा है, okay, right. जब ये सारी चीजें भी हो जाएगी, आपने सारे स्ट्रेस बस्टर्स यूज कर लिए लेकिन फिर भी आपका स्ट्रेस नहीं गया, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा आपका एक फ्रेंड आएगा, सेल्फ प्रोक्लेम काउंसलर, जो आपको पॉजिटिविटी वाली बात बताएगा। लाइफ इज व्हाट यू मेक इट, लाइफ इज 10% ऑफ व्हाट यू टेक इट एंड 90% हाउ यू मेक इट। देन दूसरी बात आ जाएगी कि भाई स्टे पॉजिटिव, बेटर डेज आर ऑन इट्स वे एंड लाइक दैट। आप 1 मिनट का टाइम लीजिए और सोचिए कि जब भी बहुत सारा गुस्सा या आप बहुत ज्यादा दुखी हो या इधर आप बहुत ज्यादा डरे हुए हो और कोई ऐसा पर्सन आके आपको ऐसा बोलता है कि स्टे पॉजिटिव, बेटर डेज आर कमिंग, स्टे पॉजिटिव, लाइफ इज 10% व्हाट हैपेंस टू यू एंड 90% ऑफ लो हाउ यू रिएक्ट टू इट, तो आपको कैसा लगेगा? उस टाइम पे आपका बिल्कुल ही मन नहीं होगा कि आप ऐसी किसी भी पॉजिटिविटी को अपने अंदर सुने, बार बार देखे, डाले एंड लाइक दैट। आपका मन होगा कि शांत हो जाओ, पॉजिटिविटी सब साइड में रखो, ठीक है, एग्जैक्टली राइट। ऐसा क्यों? क्योंकि माइंड उस फ्रीक्वेंसी, उस स्टेट ऑफ माइंड में होता ही नहीं है कि हम ये सारी चीजें ग्रैब करें, राइट। तो क्या ये सारी चीजें सच नहीं है? इज इट? ये सारी चीजें सिर्फ बोलने के लिए ही है? इट इज जस्ट इजी टू स्पीक, दैट्स व्हाई हमने बोल दी और खत्म? कि ये अप्लाई करनी भी इतनी आसान है? यस और नो? ठीक है, अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैं तो कहूंगा डेफिनेटली इसको हम अच्छे से अप्लाई भी कर सकते हैं अपनी लाइफ में। Okay, somebody has mentioned something in chat. Can we say that meditation or healing therapies are permanent solution or a better option than other stress busters? Yes, it is option than other stress busters, but here what I am going to talk about the ready and immediate solution, because meditation करने के लिए भी आपको एक secluded, एक अलग जगह पे जाना पड़ता है, और आप जब बहुत ही स्ट्रेस में हो तो आपको किसी ना किसी को बुलाना पड़ेगा, कि कोई हीलर को कांटेक्ट करना पड़ेगा कि भाई मेरा हीलिंग कर दो जिससे मेरा स्ट्रेस जाए। इससे भी बेटर सॉल्यूशन है जो इमीडिएट स्ट्रेस में आपको रिलीफ दे सकता है। हम उसके ऊपर आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो हम समझते हैं कि ये पॉजिटिविटी और ये सारी चीजें हम हमारी लाइफ में इवन इन द टाइम ऑफ क्राइसिस, जब भी हम अपसेट हो या दुखी हो उस वक्त भी इसको कैसे यूज कर सकते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड। ओके, सो पहले हम ये समझते हैं माइंड और एनर्जी का। पहले हम ये समझ लेते हैं कि माइंड और एनर्जी का क्या कनेक्शन है, हाउ माइंड एंड एनर्जी इज यूजफुल। Okay, somebody has given me some answer that whenever he is stressed down, he talk less, and there is a crowd talk less crowded air condition बस में चले जाते हैं और लंबा रूट लेते हैं अपने मन को शांत रखने के लिए।
Right, that is a good option, but just imagine that you need the immediate impact कि आप अपने ऑफिस के डेस्क पे ही स्ट्रेस को रिलीव करना चाहते हो, तो कैसे करते हैं? जस्ट बने रहिए, थोड़ा सा मैं कोरिलेशन समझा दूं कि कैसे कैसे चीजें काम करती है, then it will be easy for me to make it to explain you the process. Okay, माइंड और एनर्जी का बहुत ही स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है। इमेजिन आप अपने ऑफिस में हो, शाम के 7:30 बजे है, 7:30-8 बजे है, और आपको घर जाने का टाइम है, पूरे दिन बहुत सारा काम किया है, राइट? डेफिनेटली काम किया है तो थकान तो लगनी ही लगनी है, और इतने में ही आपका बॉस आता है। अगर आप ओनर हो तो ऐसा समझ लेते हैं कि आपको क्लाइंट का फोन आता है, और अगर आप एम्प्लॉय हो तो ऐसा समझ लेते हैं कि आपके बॉस आता है और आपको कहता है कि इतना काम तो करना ही पड़ेगा। क्लाइंट कहता है कि ये काम मुझे करके ही दो, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, मुझे ये चाहिए, मतलब चाहिए, और बहुत ही रूड वे में आपसे ये बात करता है। डेफिनेटली अगर रूड वे में हमें बात मिली है तो हमारा माइंड डिस्टर्ब और हो जाएगा, और एनर्जी डाउन हो जाएगी, काम करने का बिल्कुल मन नहीं होगा, और शायद हम रिएक्ट भी कर दे कि ये काम नहीं करेंगे, जो होता है कर लो, राइट? ये भी पॉसिबल है, हम ये भी कर सकते हैं। इसी सिनेरियो को थोड़ा सा डिफरेंट करके देखते हैं। बॉस आता है, काम वही है, वही काम आपको देना है, लेकिन बॉस बड़े ही प्यार से आपको कहता है, अरे तुम्हारा, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम नाम ले लेते हैं जितेंद्र, आई होप यहाँ जितेंद्र नहीं है, अगर है तो इट इज जस्ट अ कोइंसिडेंस, कि अरे जितेंद्र तुम्हारा काम तो बहुत अच्छा था, 2 दिन से तुमने जितनी मेहनत की है बहुत ही बढ़िया की है, एंड आई एम वेरी हैप्पी, ये छोटा सा काम और कंप्लीट कर दो। तो जितेंद्र की एनर्जी का लेवल क्या होगा? इट ही विल बी एट अनदर लेवल ऑफ एनर्जी, राइट? क्यों वैसा? क्योंकि इट इज अ सिंपल, हमारी सोच जैसे बदल जाएगी, हमारा एनर्जी का लेवल भी अपने आप चेंज हो जाएगा। हम जैसे ही पॉजिटिव सोचेंगे अंदर से, हाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये पॉजिटिविटी जो भी है उसका फ्लो अंदर से आना चाहिए, बाहर से सिर्फ दिखावे के लिए पॉजिटिविटी नहीं होनी चाहिए। तो जैसे ही वो पॉजिटिविटी आएगी हमारी एनर्जी पूरी चेंज हो जाएगी, हम हमारा काम स्पीड में और अच्छे से कर देंगे, राइट? यस, तो सिंपल है, जैसे ही हमारे विचार पॉजिटिव होंगे, जैसे ही हम पॉजिटिव सोचेंगे, हमारी एनर्जी अपने आप बढ़ जाएगी। यस, ये मैंने आपसे पहले भी कहा कि जब भी हम नेक्स्ट टाइम एएमए में ऑफलाइन मिलेंगे, मैं ये फिजिकली प्रूव करके दिखाऊंगा कि पॉजिटिव सोचने से और नेगेटिव सोचने से हमारी बॉडी में कितना इम्पैक्ट आ जाता है। यस, लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट पॉइंट। ओके, सो हमारी थॉट्स जो है उसको हम ये समझ लेते हैं। Okay, Heta Dave has asked a question, how we identify the positivity. Just give me 2 minutes, Heta ji. I will complete this topic, and I will definitely answer your question. Okay. So हमारे जो थॉट्स है उसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसीज कह सकते हैं, राइट? सो हेता जी का आंसर भी इसी में ही है कि देयर आर गुड फ्रीक्वेंसीज, देयर आर बैड फ्रीक्वेंसीज। गुड फ्रीक्वेंसीज आर समथिंग दैट मेक्स यू फील गुड, दैट मेक्स यू फील एनर्जाइज्ड, एंड दैट इज व्हाट वी से पॉजिटिविटी, अंदर से आई हुई पॉजिटिविटी। हाँ, ये सोच के अंदर से ये आता है कुछ आवाज, और वो सुन के या वो सोच के आपको अच्छा लगता है, सो दैट इज द गुड पॉजिटिविटी। और कुछ सोच के या तो कुछ सुन के कुछ देख के बुरा लगता है तो दैट इज बैड फ्रीक्वेंसी, नेगेटिव एनर्जी, लोअर एनर्जी, राइट? सो हम हमारे थॉट्स को फ्रीक्वेंसीज में भी डिवाइड कर सकते हैं। सो हेता जी के आंसर के लिए मैं कहूंगा कि पॉजिटिविटी इज समथिंग दैट कम्स फ्रॉम विद इन एंड नॉट फ्रॉम आउटसाइड। आपको किसी को बाहर से कहने की जरूरत ना पड़े, उसको ही हम कह सकते हैं कि वो पॉजिटिविटी है। बाहर से किसी को कुछ कहने की जरूरत पड़े तो वो पॉजिटिविटी नहीं है, इट इज जस्ट अ शोबिज, क्योंकि बाहर से आने वाली एनर्जी आपको अंदर इतना इम्पैक्ट नहीं करेगी। अंदर इतना सारा आवाज चल रहा है तो बाहर से हमें कैसे कुछ समझ में आएगा, राइट? लेट्स मूव अहेड। ओके, तो जब भी ओके, ये आप सबके लिए भी है।
सो आप सब लोग मेरी स्क्रीन देख पा रहे होंगे अच्छे से. सो यू कैन सी कि जब भी हम बीच साइड अपने बेस्टीज, अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ पिकनिक में गए हो, चिलिंग में, या तो किसी के साथ बहुत ही जोर शोर से आर्ग्यूमेंट हो रही है, तब हमारी सांसों सांस यानी ब्रीथिंग का लेवल कैसा हो जाता है. तो जब भी हम बीच साइड पे है या तो हम बहुत ही रिलैक्स्ड है, इंजॉइंग है, तो उस पॉइंट पे हमारी ब्रीथिंग एकदम ही रिलैक्स, कामिंग हो जाती है, डाउन हो जाती है. हम गहरी सांसें लेने लगते हैं, जिसको हम दूसरी भाषा में कहेंगे वाह. जैसे कि कोई बहुत ही खूबसूरत नजारा देख लिया, कोई खूबसूरत बीच देख लिया, तो अंदर से एक ही आवाज आएगी वाव. अभी जब भी हम ये वाव वर्ड बोलते हैं, तो जो वाव है तो उसमें हम एक्सलेशन अपने आप लंबा हो जाता है. यस या. और उसी तरह से जब भी हम किसी से झगड़ रहे हैं, किसी से गुस्सा कर रहे हैं, किसी से डिस्टर्ब है, दुखी है, अपसेट है, बोर्ड है, अलग हो जाती है, उस वक्त हमारी ब्रीथिंग छोटी हो जाती है, डाउन हो जाती है. राइट. जैसे कि एक बच्चे को अगर हम देखेंगे उसको रोते हुए, तो ठीक है, वो अंदर सांसें लॉक कर रहा है. राइट. सो ब्रीथिंग पूरी की पूरी चेंज हो जाती है. Yeah, I hope I am audible to all. Yes. ठीक है. सो माइंड जो भी है वो पूरा का पूरा ब्रीथिंग से चलता है, ब्रीथिंग के बेसिस पे. अगर माइंड में कुछ चेंजेस होते हैं तो हमारी ब्रीथिंग बदल जाती है. उसी तरह से अगर हमारे ब्रीथिंग में हम चेंजेस ला सकते हैं, तो हमारा माइंड भी चेंज हो जाएगा डेफिनेटली, इजीली. ठीक है, क्योंकि माइंड और ब्रीथिंग एक ही फ्रीक्वेंसीज पे चलते हैं. अगर हमें गुस्सा है तो ब्रीथिंग अपने आप फास्ट ही हो जाएगी, और अगर हमारा मन शांत है तो ब्रीथिंग अपने आप स्लो हो जाएगी. राइट. हमारा मूड चाहे कितना भी खराब हो, कितने भी डिस्टर्ब हो, कभी भी ऐसा मूड नहीं आएगा कि आज तो सांस लेनी ही नहीं है. हम चाहे कि ना चाहे, हम सांस तो लेंगे ही लेंगे. यस, लेंगे या नहीं लेंगे कि किसी दिन मूड खराब हो गया तो आज एक दिन सांस नहीं लूंगा, ऐसा आएगा. यू कैन राइट द आंसर्स इन द चैट बॉक्स ऑल्सो. किसी को अगर ऐसा कहना है कि नहीं आज तो सांस नहीं लेनी है, तो दे कैन राइट डाउन द नो. एनीबडी एनीबडी. मैं साइलेंस का मतलब नो समझू? I hope everybody is following me. Okay, Kanak has responded, it is not possible. हमें तो सांस लेनी ही पड़े. Yes, that is true. Okay, Sibrita Mohanty, not possible. Definitely, कुछ भी हो जाए, कितना भी गुस्सा आ जाए, तो सांस तो हमें लेनी ही पड़ती है. तो ब्रीथिंग एक ऐसा पॉइंट है, एक ऐसा की है, जिसके हेल्प से हम हमारे माइंड को इजीली कंट्रोल कर सकते हैं. मुझे लगता है सिर्फ दो ही जन हमारे साथ है, दूसरे अगर जवाब देंगे तो आई विल बी हैप्पी, दैट विल फील लाइक दिस इज एन इंटरेक्टिव सेशन. ओके, एनीवेज, नॉट एन इश्यू. ओके, नॉट पॉसिबल, नीड टू ब्रीथ फॉर लाइफ, एवरीबॉडी हैज टू ब्रीथ. राइट, दो तीन लोगों ने और जवाब दिया, हैप्पी टू नो. राइट. सो अगेन, स्ट्रेस होता कहां पर है? माइंड है. माइंड में थॉट, में थॉट, नेगेटिव थॉट आती है, हमारी एनर्जी डाउन होने लगती है. अगेन, जैसे ही हमारी एनर्जी डाउन होने लगती है, हमारा स्ट्रेस का लेवल बढ़ता है, ब्रीथिंग फास्ट होने लगती है. अगर हम ब्रीथिंग को कंट्रोल कर ले, जबरदस्ती उसको थोड़ा सा स्लो कर ले, बंद नहीं करना है, उसको स्लो कर ले, तो अपने आप हमारे माइंड का जो थॉट प्रोसेस है वो पूरा का पूरा ब्रेक डाउन हो जाएगा. राइट, पूरा का पूरा थॉट प्रोसेस ब्रेक डाउन हो जाएगा. यस. तो इसी तरह से हम हमारे स्ट्रेस को भी कंट्रोल कर सकते हैं एट द मोमेंट. उसी वक्त जब भी गुस्सा आ रहा है और हमें काम पे फोकस करना है,
हम ब्रीथिंग की मदद से हमारे स्ट्रेस को कंट्रोल कर सकते हैं। अब हम ऑनलाइन है, यानी मैं आपको एग्जैक्टली ब्रीथिंग करवा तो नहीं सकता, लेकिन आपको समझा जरूर सकता हूं कि ब्रीथिंग किया कैसे जाता है, हाउ वी कैन डू द ब्रीथिंग वर्क्स। So let's move to the next slide, wherein I have explained how to do breathing work. Yeah, breathing work is very simple. कि जब भी आप इनहेल करें तब आपका बेली, पेट जो है वो बाहर आ जाना चाहिए, और जब भी आप एक्सहेल करें तो आपका पेट अंदर की साइड चले जाना चाहिए और पूरी की पूरी हवा बाहर। ठीक है, सिंपल। देखो मैं करके बताता हूं, इट इज लिटिल बिट ऑड बट आई विल ट्राई माय बेस्ट। यू कैन फोकस ऑन माय टमी। आई एम इनहेलिंग, जैसे ही मैं इनहेल करूंगा मेरी पेट बाहर, you can see the movement in my hand, and as soon as I'll exhale, my tummy will go deep inside. ठीक है, अगर हम इसी तरह से स्लोली एंड ग्रेजुअली ब्रीथिंग कर सकते हैं, ठीक है, तो हमारा जो माइंड है, जो माइंड का जो डिस्टरबेंस है, जो अप्स एंड डाउन्स है, वो कंट्रोल में आ सकता है। अभी कुछ लोग यहाँ पर ये सोचेंगे, तो इसका मतलब क्या ये हुआ कि हमारी जो सारी की सारी ब्रीथिंग है, सारी की सारी सांसें है, वो सब पेट में जाती है? तो नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारी जो ब्रीथिंग है वो लंग्स में ही रहती है, लेकिन लंग्स और स्टमक के बीच में एक डायफ्राम होता है। तो अगर जब भी हमारे लंग्स पूरा का पूरा भरते हैं, पूरे के पूरे फिलअप होते हैं, ठीक है, तो डायफ्राम अपने आप नीचे पुश होता है और हमारा टमी बाहर आ जाता है। अगर आप लंग्स का डिजाइन अच्छे से ऑब्जर्व करोगे तो ज्यादा से ज्यादा alveoli और कैपिलरीज, जो मिनी मिनी कैपिलरीज है, जो ऑक्सीजन को आपके ब्लड में मिक्स करती है, वो ज्यादा से ज्यादा नीचे के एरिया में बहुत है। यानी अगर आप गहरी सांस, फुल ब्रीथ अगर लोगे प्रॉपरली, तो अपने आप ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन आपके ब्लड में फ्लो होगा। ठीक है, और उसके साथ साथ दूसरा बेनिफिट ये भी है कि अपने आप जो थॉट फ्रीक्वेंसीज है वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, किसी ने मुझे पूछा है कि ये अनुलोम विलोम, ओके, दिस इज नॉट अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम में हमें एक नाक से सांस लेनी है, दूसरे से छोड़नी है। यहाँ पर मैंने जब सांसें ली तब प्रॉपरली बोथ द नॉस्ट्रिल्स आई हैव इनहेल एंड बोथ द नॉस्ट्रिल्स से मैंने एक्सहेल किया है। ठीक है, इसमें आप स्ट्रेस तुरंत ही रिलीव करने के लिए इसे इस तरह से भी कर सकते हो कि सांस अंदर ली नाक से, और जब छोड़ रहे हो तो मुंह से छोड़ो और उसकी एक्सटेंशन करो, उसको लंबा करो। ठीक है, हो सके उतना उसको लंबा करो। राइट, चलिए हम इस चीज को यहां पर प्रयोग करते हैं और देखते हैं कि कितना इंपैक्ट रहता है। वी विल डू ओनली फॉर 5 मिनट्स। इनहेल करना है और मुंह से छोड़ना है। यानी अगर आप इनहेल करोगे जैसे कि 5 सेकंड, तो वो कोशिश करो कि मुंह से छोड़ने की 7 सेकंड 8 सेकंड, ठीक है, लेकिन मुंह से ही छोड़ना है। राइट, सीधे बैठ जाइए और ट्राई कीजिए आंखें बंद करके। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड सजेस्ट एकता जी कि आप पहले ये कीजिए, देन हम क्वेश्चंस पे आते हैं। या ओके, आंखें बंद करके I'll give you only 5 minutes. If you can do this exercise, you can definitely experience the impact of releasing your stress at this point itself. आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, अपने डेस्क पे ही आप अपना स्ट्रेस रिलीज कर सकते हो। अगर हम ऑफलाइन होते तो डेफिनेटली हम इसको प्रैक्टिकली कर पाते। नेक्स्ट टाइम जब भी सारी चीजें स्टेबल हो जाएगी, वी विल मीट ऑफलाइन वंस अगेन। Inhale and then exhale slowly.
यस निराली जी, पेट में सांस भरनी है और मुंह से निकालनी है, कोशिश कर सकते हैं, बिल्कुल उसी तरह से करना है। इस एक्सरसाइज को हम कहते हैं जीरो ब्रीथिंग, यानी इसके अलावा तो बहुत सारी दूसरी एक्सरसाइजेस है ब्रीथिंग की, जिससे हम स्ट्रेस को आपके डेस्क पे उसी पॉइंट पे उसी वक्त इजीली रिलीज कर सकते हैं। बट दिस एक्सरसाइज इज मस्ट टू बी लर्न। अगर ये आ गई तो इसकी भी इम्पैक्ट बहुत अच्छी है। इसके अलावा भी बहुत सारी एक्सरसाइजेज है ब्रीथिंग के ऊपर ही है। सर इट्स वर्किंग। ओके, हिता जी को ये लगा कि हाँ ये तो काम कर रहा है, दैट्स ग्रेट। अगर आपके लिए काम कर सकता है तो डेफिनेटली इट कैन वर्क ऑन एनीवन। No, we shall never do shallow breathing. We should always do deep breathing. So this is just the zero exercise, यानी स्ट्रेस रिलीविंग के लिए। तो इसके अलावा भी बहुत ही डीप में एक्सरसाइजेज है, बहुत सारी एक्सरसाइजेज है। Okay, we will do one more minute. Okay, relax. Anybody who's doing, they can come back, get back to me. Okay, please move to the other exercises. Like we don't have much time, as I have only. It's working well, Giriraj Dave. It's working well, right? So many people I have seen, they are at their desk itself. They are not even leaving their places to do this exercise, and they can easily remove the stress. As I am running out of the time, I cannot go for the detailed exercises, because the explanation of exercises, it will itself take 20 to 15 minutes more for the next exercises. We can have a detailed sessions and detailed seminars for that in the future. Yes, it's working. Thank you so much. Right, the breathing is such a simple thing, and such a thing that is so much connected to us, and so very common that we tend to forget it very easily. But it has a very beautiful and very calming effect in our body. The best part of this exercise is it's just don't only releases the stress, but it also improve your performance many fold. Yes, simple but effective. Thanks. Yes, thank you Arvind Singh ji. The best part of this exercise is, I'm repeating once again, it increases your efficiency many folds. As soon as the immediate stress starts getting released from your body, it will activate the brain to focus on certain aspect that you are working on, right? Another secret about this exercise that I would like to explain in this session, वो सीक्रेट ये है कि ये एक्सरसाइज आप जितना अच्छा जितना ज्यादा परफॉर्म करो, इसके एक तो कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बिल्कुल नहीं। सांस लेने के साइड इफेक्ट कभी हो भी नहीं सकते हैं, एज वी नो, क्योंकि अगर साइड इफेक्ट्स होते तो अब तक पता नहीं कितने क्या हो गया होता। बट इसका एक सुपर इफेक्ट है कि स्ट्रेस रिलीव करने के साथ साथ ये हमारा जो फ्रंटल कॉर्टेक्स है उसको एक्टिवेट करता है। फ्रंटल कॉर्टेक्स एक्टिवेट होने की वजह से हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी बढ़ जाती है, राइट? मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर उसको देखते हैं तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी बढ़ जाती है। और अगर स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो अगर ब्रीथिंग सही तरीके से किया जाए तो ये एरिया हमारा इंट्यूटिव सेंसेस का एरिया है, जिसे हम थर्ड आई भी कहते हैं, तो वो भी एक्टिवेट होता है। यस, राइट। somebody has asked me question कि गुस्सा कैसे रिलीज हो सकता है। तो अगर इमीडिएट गुस्सा आया हो तो उसको रिलीज करने के लिए ये वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव मेथड है। आप सारे विचार साइड में रख दो और थोड़ा सा ब्रीथिंग कर लो 2-3 राउंड, तो गुस्सा अपने आप 20-30% डाउन हो जाएगा। पूरे के पूरे विचारों की जो श्रृंखला है वो चेंज हो जाएगी। लेकिन अगर आपका नेचर लाइक शॉर्ट टेम्पर्ड है और अगर किसी पर्सन का नेचर ही है कि छोटी छोटी बातों में गुस्सा करे या तो नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखे, तो उसके लिए डेफिनेटली वी कैन गो फॉर द डिटेल एंड अदर एक्सरसाइजेस दैट कैन रियली हेल्प। यस, हाउ टू डील विद द ओवरथिंकिंग। ओवरथिंकिंग इज अगेन
मैंने शुरुआत में किसी ने पूछा था एंजाइटी के बारे में, इट हैज सम और द अदर इफेक्ट कनेक्टेड विद द एंजाइटी. This exercise can help you a little bit with the overthinking, and other breathing exercises can definitely help you with to calming down the overthinking. And after that, if you go for the proper meditation, the meditation will have a extraordinary effect on you. Yes. There is one more method that I can guide you with, one more exercise that I can help you with, and this is for only if the when the people is very depressed or very down, उन्होंने अपनी एनर्जी एकदम कम कर दी है, बहुत ही अपसेट से रहते हैं, राइट? तो वैसी सिचुएशन में आप क्या कर सकते हो? देखो, मैं थोड़ा सा पीछे चला जाता हूं. जब भी हम ज्यादा डिप्रेसिव थॉट्स में चले जाते हैं, या तो ऐसे थॉट्स में चले जाते हैं जो नेगेटिव है, प्रॉब्लमेटिक है और हमारे माइंड में बहुत परेशान कर रहे हैं, तो हमारी बॉडी लैंग्वेज हो जाती है ऐसी जैसे कि हमारे कंधों पे किसी ने बहुत सारा बोझ एक साथ रख दिया हो. ठीक है? उस टाइम पे हमें क्या करना है, हमारा जो बॉडी पोस्चर है वो सिर्फ इस तरह से स्ट्रेट करके बैठ जाना है या तो खड़े हो जाना है, और कुछ नहीं, कुछ सोचने की कोशिश नहीं करनी है, किसी चीज पे फोकस नहीं करना है. एज इफ प्रेसिडेंट आपको पद्म विभूषण या तो पद्म भूषण कोई बहुत बड़ा अवार्ड देने वाला हो, तो उस अवार्ड को आप कैसे, तो उस अवार्ड को आप कैसे लोगे, ठीक है, उस पोजीशन में आपको हो जाना है. यस यस, कोई कुछ पूछ रहा था? एनीबडी वाज आस्किंग? कोई कुछ पूछ रहा है? या ओके, किसी से गलती से माइक अनम्यूट हो गया होगा. ओके, एनीबडी एल्स प्लीज टेल मी हाउ टू इग्नोर नेगेटिव थिंकिंग. ओके, आई होप किसी ने मुझे पूछा है कि हाउ टू इग्नोर नेगेटिव थिंकिंग. अखिलेश जी, आपको आई होप आपके सवाल का जवाब मिल गया हो. इसके अलावा ब्रीथिंग से और दूसरे मेथड से आप कर सकते हो. ठीक है? ओके, सो लास्ट 10 मिनट्स जो रखे थे वो क्वेश्चन आंसर्स के लिए ही रखे थे. यू कैन डेफिनेटली आस्क मी क्वेश्चंस. Anybody? Sir, I asked one question in chat box, individual to you. Individual to me. Can you type it again, as I have lost the track, क्योंकि बहुत सारे questions थे इसलिए. 1 second. Yes, please. Okay, please explain distance healing. Okay. If someone shouts and we usually get angry, how to overcome it? Okay, distance healing is a little bit different topic, but it is like, I can explain the distance healing with the help of a metaphorical example of our mobile. Like, we have a mobile, we can talk at any distance without getting our message distorted. So distance healing is also releasing the vibrations from the hand with the intention to reach that person. The universe is so designed that it can easily put the vibration exactly to that person, right? Kindly stop screen share. Okay. Yes, how to overcome distance healing. Now certain questions are like that we need to connect personally to explain, because those are the questions are not related to the subjects. How to, well, in that case, Kanak ji, the best way is to make the whole family practice this breathing, so that the family, the stress of all the member get reduced. सबका stress reduce होगा तो अपने आप family stress भी reduce हो जाएगा.
एंड जैसे जैसे स्ट्रेस रिलीज होगा, नेगेटिव थॉट्स आने कम हो जाएंगे, तो पॉजिटिव करियर की तरफ ध्यान दिया जा सकता है. अदर वे राउंड, वी कैन डेफिनेटली हैव सम conversation on what exactly you are trying to ask, because the question is little bit vague and it's the matter such that I cannot discuss openly. I Okay. hope you can understand. Yes. Yes. How to overcome fear and negative energy. How to overcome fear. Healing and meditation can definitely help you to overcome the fear, and once the fear is gone, the negative energy will definitely fade away from your aura. Right, sir, these two breathing techniques are being helpful for short temper and suddenly when person gets negative. Yes, this two breathing, this breathing can definitely help as an immediate effect, but there are many other breathing methods which can help you to remove the stress deep from yourself. Right, that we can say that traumatic stress or the like old stress or preconceived stress that is there in your aura, that can be removed with the help of certain more breathing methods, which we can definitely do when we will be in a detailed discussion and detailed sessions. What is Vipassana? Vipassana is a meditation technique, deep meditation technique. Again, it is based on breathing method. The technique cannot be explained in this forum, definitely. Can it help in improving immunity? Very much it can help you improve. The breathing can help you a lot in improving your immunity. It can be an extraordinary immunity booster. Okay. Beyond certain limit, meditation required. Okay, certain way, but when certain times. Okay, so questions are going on. I'll again come to the immunity part. It can definitely help you boost the immunity, but once you are infected, in certain days, certain times, that meditation is definitely required. Breathing can definitely protect you, but once you are infected, the doctor's support is definitely help and required. Okay, if someone is stressed, there are too many questions. Would you please answer? Someone shout, and we usually know how to overcome it. If we usually get angry if someone shouts, and you usually get angry. जब कोई गुस्सा करता है और आप गुस्से में हो जाते हो, तो अपने आप को कैसे रोको? थोड़ी देर वो कन्वर्सेशन के कन्वर्सेशन से साइड चले जाओ. अपनी ये इनहेल और एक्सेल वाली प्रोसेस एटलीस्ट 3-4 राउंड करो, तो अपने आप पूरे गुस्से के विचार डिस्टॉर्ट हो जाएंगे. राइट. Okay, anyways, thank you so much. You can definitely catch me on and you can get my details. You can also connect me on the YouTube, right? You can search my name on YouTube and you can definitely get me. वहां पर भी stress के बारे में छोटा मोटा कुछ होता रहता है. Right? Thank you so much for the today's session. We will soon catch up and let's pray that everything becomes better as early as possible and we can meet in person at the earliest. I hope I am right, Giriraj ji, and I don't know your name. आपका नाम A में लिखा है. I hope this. Sapna, sir. Okay, Sapna. Sapna ji, I hope you would have enjoyed the session and Yes, would sir, like yes. to call me in person in AMA. Sure, sir. We'll definitely catch up. And Yeah. thank you for conducting this program on online platform, sir. We'll surely meet up in offline program and conduct it at AMA as soon as possible. Yes. Thank you so much. Yeah. So thank you so much, sir. And thank you all participants for joining this program. And with your permission, shall I end the program now? Yes, definitely. Thank you so much. Thank you.